Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYSC Economics, Chapter 3A, Part 1, that is Demand Analysis. Dear friends, till our last session, we have completed with first two chapters of our syllabus. Chapter 1 was Introduction to Micro and Macro Economics, and Chapter 2 was Utility Analysis. Dear friends, Professor Alfred Marshall has introduced the concept of microeconomics. Under the concept of microeconomics, under the branch of microeconomics, the very first concept that we have to discuss was consumers behavior. So as a consumer, when we go to market to buy something, how do we behave? For that purpose, we have understood the concept of utility. We have also clarified the relationship between total utility and marginal utility. We have also discussed law of diminishing marginal utility with assumptions, criticisms and exceptions also. After that, we have discussed importance of law of DMU in our routine life, theoretical importance and practical importance. Dear friends, in our last session, we have discussed how does law of DMU form the base for law of demand or explain the relationship between MU and price. If you have remembered the last lecture, last session, first 4 mangoes I will buy happily because MU greater than price. Fifth mango I may buy or I may not buy because MU equal to price. But surely I will not buy the sixth mango because MU लेस देन प्राइस. अगर वो भैया जी को छठा मैंगो मुझे चिपकाना ही है तो ही हैड टू रिड्यूस इट्स प्राइस फ्रॉम ₹10 अप टू ₹5 विच शुड बी इक्वल टू माई MU. तो ही मेरा डिमांड बढ़ेगा. सो डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक डिमांड. चैप्टर 3A, इट इज डिमांड. फ्रेंड्स, यहाँ पे डिमांड का मतलब जो अपने को समझता है मांग, खून भरी मांग, मांग भरो सजना. फ्रेंड्स, ये उतना आसान मतलब नहीं है. लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. Our third chapter is broadly divided into two parts, chapter 3A and chapter 3B. Dear friends, chapter 3A is for minimum 10 marks and chapter 3B is again minimum for 10 marks. So alone third chapter covers at least 20 marks of our board paper pattern. हम जिसको डिमांड वर्ड समझ रहे हैं कि 5 साल का एक छोटा बच्चा एक दुकान में आके अगर ₹5 का चॉकलेट खरीद रहा है तो हो गया डिमांड. फ्रेंड्स, ये उतना आसान भी नहीं है. सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड. गिव द हेडिंग. फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कंप्लीट योर नोटबुक. आई रिपीट माई सेंटेंस, प्लीज कंप्लीट योर नोटबुक. फ्रेंड्स, 12th का लिखाया हुआ नोट्स आपको TY BCom तक कहीं ना कहीं काम लगते रहेगा. वॉट एवर नोट्स वी हैव, प्रिंटेड नोट्स, टेक्स्ट बुक, वॉट एवर यू हैव, पर ये जो हम डिस्कस करते हुए लिखते हैं इसकी जरूरत आपको TY BCom तक कभी भी पड़ते रहेगी, इवन फॉर CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, ऑल दैट. तो प्लीज कंप्लीट योर नोटबुक. वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, प्लीज राइट इट डाउन in a proper manner. So, chapter 3A, demand, start with meaning of demand. Start with meaning of demand. Right now, dash करके लिखेंगे. Any want becomes a demand. Any want becomes a demand only when the consumer has two conditions, that is willingness to buy and
कैपेसिटी टू बाय एनी कमोडिटी और सर्विस। अगर आप इसी पैटर्न से लिखेंगे तो जल्दी याद रहेगा फ्रेंड्स, एनी कमोडिटी और सर्विस। नेक्स्ट टाइम डैश करके अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है वरना, नहीं तो। अदरवाइज इट बिकम्स अ डिजायर। अदरवाइज इट बिकम्स अ डिजायर। सॉरी फ्रेंड्स, अब 4 वर्ड्स के नीचे हमने अंडरलाइन करके रखी है, वांट, डिमांड, विलिंगनेस एंड डिजायर। अगर हम इसका सीधा हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, एनी वांट बिकम्स अ डिमांड ओनली व्हेन द कंज्यूमर हैज 2 कंडीशंस। कोई भी चीज डिमांड तक कब पहुंचे, जब कंज्यूमर के पास 2 आवश्यक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। द कंज्यूमर मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट 2 कंडीशंस, विलिंगनेस टू बाय एंड कैपेसिटी टू बाय। कोई भी चीज या सर्विस को खरीदने की उस कंज्यूमर की, उस कस्टमर की चाहत, इच्छा हो और उसे खरीदने की उसकी क्षमता, औकात हो। अदरवाइज इट बिकम्स अ डिजायर। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज वाइट BMW कार खरीदने की मेरी इच्छा है पर औकात नहीं है, ओके। और 2000 रुपए का घोड़ा साइकिल, वो भैया जी का टिन साइकिल आता है, वो खरीदने की मेरी औकात है पर मेरी इच्छा नहीं है। अरे वो साइकिल खरीद के करेंगे क्या? थोड़ी ना घर से यहाँ तक आते हुए सबको बीच में दूध, न्यूज़पेपर, ब्रेड वो सब सप्लाई करते हुए आएंगे, साइड बिजनेस हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो BMW खरीदने की इच्छा है पर औकात नहीं है, और 2000 का घोड़ा साइकिल खरीदने की औकात है पर इच्छा नहीं है, तो दोनों में से कुछ भी डिमांड तक नहीं पहुंचेगा। दोनों में से कुछ भी डिमांड तक नहीं पहुंचेगा फ्रेंड्स, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एनी वांट बिकम्स अ डिमांड। अगर मैं इन वर्ड्स को इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से अगर समझने बैठूं तो फ्रेंड्स ऑल दिस 4 आर सिनोनिमस वर्ड्स। ये चारों समानार्थ शब्द है और चारों का एक आसान हिंदी मतलब होता है इच्छा। अब अगर मैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता हूं तो देखो क्या मजा आता है। आपकी कोई भी इच्छा तब इच्छा बनती है जब उसे पूरी करने की आपकी इच्छा हो, वरना वो इच्छा बन के रह जाएगी। आपकी कोई भी इच्छा तब इच्छा बनती है जब उसे पूरी करने की आपकी इच्छा हो, वरना वो इच्छा बन के रह जाएगी। आप लोग पकड़ के मारेंगे मेरे को, सर क्या इच्छा 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 चल रहा है। फ्रेंड्स, ये चारों वर्ड्स इंग्लिश भले ही ये मानता है कि ऑल ऑफ दिस 4 आर सिनोनिमस वर्ड्स, मैं प्रूव कर दूं कि ये चारों सिनोनिमस वर्ड्स नहीं है। वांट का मतलब होता है दिल के किसी कोने में चाहत की शुरुआत होना, द ओरिजिन पार्ट ऑफ विश, विल, दैट इज वांट। दिल के किसी कोने में चाहत की शुरुआत होना, वो बन जाएगा वांट। अगर वो चाहत पूरी हो जाएगी तो डिमांड, अगर वो चाहत पूरी नहीं हो पाएगी तो डिजायर। और वांट को डिमांड तक ले जाने के लिए द वे विच वी सिलेक्ट, द प्रोसेस, द मेथड विच वी प्रीफर, जो रास्ता हम पसंद करते हैं वांट को डिमांड तक ले जाने के लिए, वो बन जाता है विलिंगनेस। चारों में बड़ा फर्क है फ्रेंड्स, आई रिपीट इट अगेन। दिल के किसी कोने में चाहत की शुरुआत हो जाना, इट इज वांट। अगर वो चाहत पूरी हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगा तो डिमांड। अगर वो चाहत पूरी नहीं हो पाती है तो डिजायर। वांट को डिमांड तक ले जाने के लिए द वे, द मेथड, द प्रोसेस which we prefer, which we select, it is willingness. Let me share one example with you. Suppose कोई एक लड़का FIJC में एंट्री मारता है और पहले ही दिन उसे एक लड़की पसंद आ जाती है और ये सोच लेता है कि मैं इस लड़की को प्रपोज करूंगा। कॉलेज को 6 महीने हो गए लेकिन कभी ये प्रपोज तक बात पहुंच नहीं पाई। उसको काफी बार ऐसी इच्छा होती है कि वो महंगी वाली गिफ्ट उसको दे, पर उसकी औकात सिर्फ 5 रुपए के गुलाब की है। विलिंगनेस एंड कैपेसिटी। बच्चे की इच्छा है कि महंगी वाली गिफ्ट करूं, पर औकात सिर्फ 5 रुपए या 10 रुपए के गुलाब की है।
अब सपोज आफ्टर 6 मंथ्स कॉलेज में रोज डे डिक्लेयर हुआ जो रोज रोज नहीं आता। अब फ्रेंड्स यहां से पूरा लॉजिक समझना। रोज डे के दिन दोपहर का 12 बजे का कॉलेज है, लेकिन वो बच्चा सुबह 6 बजे आंख खुल गई और दिल के किसी कोने में चाहत की शुरुआत हुई कि आज तो मैं उसको प्रपोज कर ही दूंगा। फ्रेंड्स, दिल के किसी कोने में चाहत की शुरुआत हुई सुबह 6 बजे कि आज मैं उसको प्रपोज कर दूंगा। शाम को 6 बजे तक पता चल जाएगा, कॉलेज लीव हो उसके पहले, कि क्या वो डिमांड तक जाता है कि डिजायर तक आता है। और अब वो पूरा दिन जिस हिसाब से निकालेगा, जिस तरीके से बिताएगा, वो पूरा दिन निकालने का जो तरीका होगा, इट इज विलिंगनेस। सुबह 11 बजे तक में 10 बार नहा लेगा, 9 बार शावर करेगा, 8 बार कपड़े बदलेगा, 7 बार परफ्यूम स्प्रे करेगा, 6 बार बाल बनाएगा, 5 बार मेंटली प्रिपेयर होगा और कॉलेज में जाने के बाद अपने फ्रेंड्स को बोलेगा कि आज मेरा मूड ऑफ है, मैं लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स लिखूंगा, आपको जो सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है करो। झूठ बोल रहा है। आज वो पूरे दिन उस लड़की का पीछा करेगा गुलाब लेकर। अगर लड़की कैंपस में तो ये भाई साहब भी कैंपस में, अगर लड़की लाइब्रेरी में तो ये भी लाइब्रेरी में, अगर लड़की क्लासरूम में तो ये भी क्लासरूम में, अगर लड़की कैंटीन में तो ये भी कैंटीन में, और गुलाब लेकर उसका पीछा यूं घूमते रहेगा, यूं करते। सपोज लड़की अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही है और उनको डाउट गया, अगर लड़की ने 1-2 बार घूम के पलट के देखा तो भाई साहब यूं करके निकल जाएंगे, फिर वापस। हाँ, सपोज लड़की को समझ में आ गया कि मेरा ही पीछा कर रहा है, बहुत हिम्मत करके लड़की ने एक सामने से बोल दिया एक्सक्यूज मी, वो गुलाब मेरे लिए? नहीं, आपके लिए नहीं। इतनी हिम्मत नहीं बन पाई कि बिंदा से एक बार प्रपोज कर दे कि हाँ ये तेरे लिए गुलाब है, हाँ ना जो भी होगा देखा जाएगा। अब भाई साहब ना बोल के बैठे, नहीं तेरे लिए नहीं। शाम को 5:45-6 बजे कॉलेज खत्म हुआ, लड़की अपने घर चली गई। अब ये भाई साहब वांट से डिमांड तक नहीं पहुंचे, इसलिए 6 बजे के बाद डी फॉर डिजायर, डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर देवदास। अब तो ऐसी ऐसी बोतल के ढक्कन खुलेंगे और ऐसी ऐसी शायरियां निकलेगी, कौन कमबख्त कहता है मैं जीने के लिए पीता हूं, मैं तो पीने के लिए जीता हूं, वाह 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 वाह। ऐसी ऐसी शायरी निकलेगी क्योंकि भाई साहब अब देवदास बनने की तैयारी में है। फ्रेंड्स, लेट मी क्लेरिफाई वन थिंग। अगर किसी के भी साथ ऐसा कुछ होता है कि आपकी वांट डिमांड तक नहीं पहुंचे, तो मेहरबानी करके उसे डिजायर में मत आने दो। डिजायर का एक मतलब होता है डिप्रेशन, क्योंकि आपकी चाहत दबी हुई है और वो पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ भी करके विलिंगनेस से यू टर्न लेके वापस वांट पे चले जाने का, ये सोच लेने का कि 12th में भी रोज डे आएगा, अगर 12th में आएगा तो 13, 14, 15 सब अपने लिए ही है, अगर वहां तक पढ़ेंगे तो। एक बात और क्लियर कर दो फ्रेंड्स, अगर कॉलेज में गर्लफ्रेंड नहीं भी मिले ना, कोई अफसोस नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट डिग्री ले लो, बेस्ट ऑफिस ज्वाइन करो, खुद का पर्सनल एयर कंडीशन केबिन होगा, खुद की पर्सनल असिस्टेंट होगी। कॉलेज में 4-5 महीने में क्या उखाड़ लेंगे, वहां पे पूरा दिन साथ में होंगे, लंच साथ में होगा, लंच बॉक्स साथ में खुलेगा, रोटी मेरी सब्जी तेरी। तो फ्रेंड्स एक बात समझ लो, कुछ भी हो जाए हमें डिजायर पे नहीं आना है। आप विलिंगनेस से यू टर्न ले लो और वांट से वापस डिमांड तक जाने की तैयारी करो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? तो द रीजन इज वेरी क्लियर फ्रेंड्स, डिमांड हैज पॉजिटिव इफेक्ट व्हाइल डिजायर हैज नेगेटिव इफेक्ट। जब आप कोई चीज डिमांड करते हो, इट मीन्स यू आर रेडी टू परचेज दैट प्रोडक्ट, इट मीन्स यू आर रेडी टू मेक द पेमेंट। तो आप जब कोई पेमेंट करते हो, वो आपका खर्चा है पर किसी और की इनकम है। अगर आप यहाँ पे 12th के क्लासेस ज्वाइन करते हो तो वो आपका खर्चा है पर हमारी तो इनकम है। तो आपका खर्चा किसी और की इनकम है, एंड दैट इज व्हाई डिमांड हैज पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। एग्जैक्टली ऑपोजिट, डिजायर हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ अ नेशन। किसी भी राष्ट्र के पब्लिक के अंदर डिजायर की वजह से निगेटिविटी क्रिएट होती है, क्योंकि वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली दे themselves फील कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। फ्रेंड्स, डिजायर नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है, डिमांड पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। हंसी मजाक में यहाँ पे वी हैव कवर्ड वन डिस्टिंग्विश बिटवीन
डिमांड एंड डिजायर। बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, ये डिस्टिंग्विश में लिखा नहीं रहा हूं, इसी में से हम इसको समझ पाएंगे। ओके, इसी में से समझ पाएंगे। एनी वांट विथ विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू बाय बिकम्स अ डिमांड। अगर ये दोनों है तो डिमांड है। ऑपोजिट साइड में क्या मिलेगा? एनी वांट विदाउट विलिंगनेस और कैपेसिटी टू बाय, विदाउट विलिंगनेस और कैपेसिटी टू बाय। अगर दो में से कोई एक भी नहीं है, वो चीज खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, वो चीज खरीदने की औकात क्षमता भी होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो इट विल बिकम डिजायर। तो एनी वांट विथ विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू बाय बिकम्स अ डिमांड। ऑपोजिट साइड, एनी वांट विदाउट विलिंगनेस और कैपेसिटी टू बाय बिकम्स अ डिजायर, बिकम्स अ डिजायर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, डिमांड हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, desire has negative effect in the minds of the people of a nation. You have to write at least 2 points. So finally meaning of demand clear हो गया है। कोई भी चीज want डिमांड तक तब पहुंचता है कि अगर आपके पास वो चीज को, चाहत को पूरा करने के लिए willingness to buy and capacity to buy, otherwise it becomes a desire। BMW कार खरीदने की इच्छा है पर औकात नहीं है, 2000 का साइकिल खरीदने की औकात है पर इच्छा नहीं है, तो दोनों में से कुछ भी डिमांड तक नहीं पहुंचेगा। अगर ये दोनों कभी साथ में हो तो ही वो डिमांड तक पहुंचेगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गिव द हेडिंग शॉर्ट नोट ऑफ टाइप्स ऑफ डिमांड। इसका एक और नाम है इंटर रिलेटेड डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, और इसका एक और नाम है इंटर रिलेटेड डिमांड, इंटर रिलेटेड डिमांड। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको डिटेक्ट करते जाऊं, आप लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमने सिंपल मार्केट में आके कोई भी चीज खरीद ली तो डिमांड हो गया, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, टोटल वी हैव 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, और उसी का नाम है इंटर रिलेटेड डिमांड। अगर बोर्ड एग्जाम में पेपर में दे आर यूजिंग द वर्ड इंटर रिलेटेड डिमांड, डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चन, सर वो क्या होता है, वो तो आपने पढ़ाया नहीं। टाइप्स ऑफ डिमांड इटसेल्फ इज इंटर रिलेटेड डिमांड। स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। फ्रेंड्स, ये जो एक शॉर्ट नोट है ना, इसमें से और 2 डिस्टिंग्विश निकलते हैं। देखिए, अगर कोई बोले कि सर 15-20 मिनट से इतना 4 लाइन पका रहा है, फ्रेंड्स ये 4 लाइन में आपकी 2 चीज कवर हो गई, एक मीनिंग हो गया, एक डिस्टिंग्विश हो गया। सिमिलरली ये जो शॉर्ट नोट आपको दिखाई दे रही है 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट का शॉर्ट नोट भी है और इसी में से 2 डिस्टिंग्विश निकलते हैं। एंड देयर आर सो मेनी एमसीक्यू इन ऑल दैट ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, फ्रेंड्स मैं बोलते जा रहा हूं, अंडरलाइन कर दीजिए और अब लिखिए, इट मीन्स goods and services are demanded. It means goods and services are demanded directly by the consumers. आप डायरेक्टली बोलो, डायरेक्टली बोलो, डायरेक्टली by the consumers to satisfy, satisfy नहीं, to satisfy their own wants, THEIR, to satisfy their own wants. Example, consumers goods. Example, consumers goods like food, खाना जो मैं खाता हूं ऐसा लगता नहीं है, क्लोथिंग कपड़े जो मैं कोई भी पहनूं सूट नहीं करते मेरे पे, फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा। नाउ जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। फ्रेंड्स, व्हाट इज डायरेक्ट डिमांड? बात बहुत आसान है। एज अ कंज्यूमर आप और मैं शॉप में जाके खड़े हो गए और हमने अपनी पसंद की कोई चीज खरीद ली अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर ओन वांट्स। व्हाटएवर कमोडिटीज प्रोडक्ट्स एट प्रेजेंट वी हैव, आपका नोटबुक, आपका पेन, मोबाइल, उसका चार्जर, सिम कार्ड, एसडी कार्ड, कवर, स्क्रैच कार्ड, व्हाटएवर जो भी प्रोडक्ट, कपड़े, जूते, घड़ी, कोई भी वो चीज
जो आप और मैं शॉप में जाके अपनी मर्जी से खरीदते हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो वो बन जाता है डायरेक्ट डिमांड। ओके, एग्जांपल कंज्यूमर्स गुड्स, कंज्यूमर खरीद रहा है इसलिए कंज्यूमर गुड्स, कपड़े, खाना, जूते, बुक, पेन, वॉट एवर जो आप अपनी इच्छा के हिसाब से खरीद रहे हैं मार्केट में जाके डायरेक्टली, तो आप बोलेंगे सर ऐसे तो हर चीज डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, सेकेंड वन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस। ओके, गिव द हेडिंग। सेकेंड वन इनडायरेक्ट, इसका एक और नाम है और डिराइव्ड डिमांड। इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड, indirect or derived demand. Underline, write down. It means goods and services are, it means goods and services are demanded, goods and services are demanded not by the consumers, not by the consumers, but by the producers, but by the producers to produce consumer goods, to produce consumer goods. Example, capital goods, example capital goods like plant and machinery, example capital goods like plant and machinery. देखिए अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो ना तो अकाउंट्स याद करो, तुरंत क्लिक हो जाएगा। असेट जिसे आप बोलते हो, कैपिटल गुड्स जिसे आप बोलते हो, प्लांट एंड मशीनरी, goods and services are demanded not by the consumers but by the producers to produce consumer goods. अगर आप और मैं मॉल में घूमते हुए एक टी शर्ट खरीदते हैं तो वो कंज्यूमर का डिमांड हुआ, वो डायरेक्ट डिमांड है। पर वो टी शर्ट बनाने के लिए जो मशीन चाहिए वो मशीन हम कभी नहीं खरीदते, हम उसकी डिमांड कभी नहीं करते। वो रेडीमेड गारमेंट कंपनी का जो मालिक होगा जो ये टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता है वो उस मशीन का डिमांड करेगा। हम कभी मॉल में घूमते हुए मशीन का डिमांड नहीं करेंगे कि ये मशीन ला जिससे मैं टी शर्ट बनाऊं। तो फ्रेंड्स वो चीज जो एक प्रोड्यूसर डिमांड करेगा ताकि वो कंज्यूमर गुड्स बनाकर कंज्यूमर को देकर उनकी इच्छाओं को पूरी करके खुद का प्रॉफिट कमा सके, तो इट इज प्लांट एंड मशीनरी, देयर इज कैपिटल गुड्स। तो जो सामान कंज्यूमर नहीं खरीदता है, एक बिजनेसमैन खरीदता है, एक प्रोड्यूसर खरीदता है ताकि वो कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर करके कंज्यूमर को सप्लाई कर पाए, तो इट इज नथिंग बट कैपिटल गुड्स, देयर इज प्लांट एंड मशीनरी, देयर इज प्लांट एंड मशीनरी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक डिस्टिंग्विश कवर हो रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। अगर हम डायरेक्ट डिमांड समझते हैं तो इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज आर डिमांडेड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर्स। ऑपोजिट साइड, इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज आर डिमांडेड नॉट बाय द कंज्यूमर्स बट बाय द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। सेकंड पॉइंट लिख पाएंगे एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग, यहां पे लिख पाएंगे एग्जांपल कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपको पर्पस समझना है तो कंज्यूमर गुड्स का पर्पस क्या था, डायरेक्ट डिमांड का पर्पस था टू सेटिस्फाई देयर ओन वांट्स, वो खुद की इच्छाएं पूरी कर रहे थे, वो खुद की इच्छाएं पूरी कर रहे थे। कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका पर्पस क्या है, टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो ये आपका एक डिस्टिंग्विश रेडी हो गया, डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड टाइप, गिव द हेडिंग थर्ड वन, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, अंडरलाइन, it means goods and it means if a single commodity or service, if a single commodity or service
is demanded to satisfy different wants at a time. To satisfy different wants at a time. To satisfy different wants at a time. Example, electricity. Example, electricity. Example, electricity. फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम इसके पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं. इफ यू हैव रिमेंबर्ड इट, इसके पहले भी हम इसको एक बार पढ़ चुके हैं. ये बिजली जो है ना, ये अपने को तो कभी समझ में ही नहीं आती है. मल्टीपर्पज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी चैप्टर 2 में इसको डिस्कस किया था. फ्रेंड्स, ये बिजली जो है ना, ये जब ट्यूबलाइट में जाती है ना तो लाइट देती है, और पंखे में जाती है ना तो पंखा गोल घूम के हवा देता है. ऐसा कभी नहीं होता है पंखे से लाइट निकले और ट्यूबलाइट गोल घूम के हवा दे. यही बिजली जब फ्रिज में जाए तो पानी ठंडा होता है, और गीजर में जाए तो पानी गर्म होता है. यही बिजली जब रेडियो में जाए तो गाना सुनाई देता है, और टीवी में आए तो गाना दिखाई भी देता है. बिजली तो वही की वही है. अ सिंगल कमोडिटी और सर्विस इज डिमांडेड टू सेटिस्फाई डिफरेंट वांट्स एट अ टाइम. एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विस एक साथ एक ही वक्त पे बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर सके तो इट इज कॉम्पोजिट डिमांड. फ्रेंड्स, इन माय चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन आल्सो आई हैव गिवन यू द सेम एग्जांपल. अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, एक ही वक्त में आप बिजली का इस्तेमाल देखो फ्रेंड्स. एक ही वक्त में अगर दादा दादी हॉल में बैठे हैं, लाइट पंखा चालू है, टीवी चालू है. अगर बड़ा भाई बेडरूम में कंप्यूटर के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहा है, छोटी बहन मोबाइल चार्जिंग में फिर भी गेम खेल रही है, बाथरूम में कहीं वॉशिंग मशीन चालू है, मम्मी कहीं किचन में मिक्सर ग्राइंडर चालू करके बैठी है, पानी का मोटर चल रहा है, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही है. एक ही वक्त में आपके घर पे एक सोसाइटी के अंदर एक साथ आप देखो तो बिजली का इस्तेमाल कितना है. एंड दैट इज वाई रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू कंपेयर टू कॉन्जिक्यूटिव मंथली लाइट बिल्स एट योर होम, ये कभी एक सरीखा नहीं आएगा. जबकि वही लाइट, वही पंखे, सब कुछ वही का वही वॉशिंग मशीन, वही फ्रिज, ओके, वही टीवी, फिर भी लाइट का बिल आप कभी कंपेयर करो तो 2 महीने का लाइट बिल कभी एक सरीखा नहीं आता है. फ्रेंड्स, हमने बहुत लोगों के मुझसे आजकल सुना है कि कोविड-19 के टाइम पे घर का लाइट का बिल डबल हो गया, डबल. जबकि वही लाइट पंखे है, वही वॉशिंग मशीन है, वही फ्रिज है, सब कुछ वही का वही रूम है, लेकिन लाइट का बिल डबल हो गया. तो आप कितनी बिजली कब इस्तेमाल करोगे और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे, ये हमें खुद को भी नहीं पता होता फ्रेंड्स. तो इट इज कॉम्पोजिट डिमांड. इट इज कॉम्पोजिट डिमांड. फोर्थ वन प्लीज. फ्रेंड्स, अब फोर्थ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ थर्ड होगा, joint or complementary demand. Fourth one is joint or complementary demand. Joint or complementary demand. Underline right now. It means 2 TWO, 2 or more commodities. It means 2 or more commodities are demanded together. 2 or more commodities are demanded together to satisfy a single want. To satisfy a single want. To satisfy a single want. Example, car and petrol. Example, car and petrol. Both are required. Both are required for traveling purpose. Both are required for traveling purpose. फ्रेंड्स, देखो ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ थर्ड वन. कॉम्पोजिट डिमांड में हमने बोला कि अ सिंगल कमोडिटी और सर्विस इज डिमांडेड टू सेटिस्फाई डिफरेंट वांट्स एट अ टाइम. चीज एक थी और बहुत सारी इच्छाएं एक साथ पूरी होती थी. एग्जांपल बिजली. अब एग्जैक्टली ऑपोजिट, इट मींस 2 और मोर कमोडिटीज आर डिमांडेड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट. अब 2 या उससे ज्यादा चीजें एक साथ चाहिए तब जाके आपकी कोई एक इच्छा पूरी होगी. बेस्ट एग्जांपल इज गिवन कार एंड पेट्रोल.
फ्रेंड्स, अगर कहीं ट्रैवलिंग करना हो तो कार और पेट्रोल दोनों होने चाहिए। थोड़ा सोच के देखो, अगर आपके पास कार है और पेट्रोल नहीं है तो क्या कार को चाटोगे? उल्टा सोचो, मजा आएगा। सपोज कार नहीं है और पेट्रोल है तो क्या पेट्रोल खुद पी के हाईवे पे भर्र, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर आपको नोटबुक में लिखना हो तो नोटबुक चाहिए, पेन में रिफिल चाहिए, रिफिल में इंक चाहिए। अगर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल करना है मोबाइल से, मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे कॉल करना है तो सबसे पहला मोबाइल चाहिए, उसमें चार्जिंग होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए, गर्लफ्रेंड का नंबर होना चाहिए, गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए उतना गट्स होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गर्लफ्रेंड भी तो होनी चाहिए, तब जाके मैं कॉल कर पाऊँ। तो एक इच्छा है गर्लफ्रेंड को कॉल करना, पहले इतनी सारी चीजें एक साथ चाहिए, तब जाके मैं एक कॉल करने की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो व्हेन टू और मोर कमोडिटीज आर डिमांडेड टुगेदर, थर्ड और फोर्थ का एक डिस्टिंग्विश बन गया फ्रेंड्स। थर्ड में क्या था, चीज एक थी और बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती थी। फोर्थ में चीजें ज्यादा है और मिलके एक इच्छा पूरी कर सकता है। ओके, लास्ट वन इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। फिफ्थ पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। अंडरलाइन, write down. In case of substitutes, in case of substitutes, if demand of one commodity rises, if demand of one commodity rises, if demand of one commodity rises, comma, demand of another commodity falls. If demand of one commodity rises, comma, demand of another commodity falls. Demand of another commodity falls. Demand of another commodity falls. Example, tea and coffee. Example, tea and coffee. Friends, F5 BCom, F5 BEF, CA, CS, CMA, 12th, ये सभी के अंदर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है ऑल्टरनेट, ऑप्शन, इसके बदले ये, उसके बदले वो, ऐसा। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे दो कंपनी के कंपटीशन की बात ही नहीं है। हम यहाँ पे दो इच्छाएं, दो प्रोडक्ट, दो इच्छाएं अपने बीच में कॉम्पीट करती है। अगर कोई एक चीज का डिमांड आपने किया तो दूसरी चीज का डिमांड आप नहीं करोगे, दैट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। अपने आप ही एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी। देखो, बोथ ऑफ दीज आर हॉट बेवरेजेस। चाय पीने वाला कॉफी पी के रह सकता है, कॉफी पीने वाला चाय पी के रह सकता है। मैंने आज तक कोई ऐसा साइको होटल आइडा नहीं देखा है कि चाय और कॉफी दोनों घुसर के एक साथ पिए। ऐसा तारक मेहता में दिखता है फ्रेंड्स। बाकी चाय और कॉफी दोनों घुसर के एक साथ कोई नहीं पीता है। ओके, अगर आज मैं इस लेक्चर के बाद अगर चाय की डिमांड करूंगा तो कॉफी की डिमांड नहीं करूंगा, और अगर कॉफी पीऊंगा तो चाय की डिमांड नहीं करूंगा। दोनों घुसर के एक साथ कभी कोई नहीं पीता है। मतलब अगर मार्केट में चाय की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर कॉफी की डिमांड बढ़ेगी तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि चाय पीने वाला कॉफी पी के भी दे सकता है, कॉफी पीने वाला चाय पी के भी दे सकता है। तो इट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड, क्योंकि जब अगर वो चाय का डिमांड करेगा तो उस वक्त वो कॉफी की डिमांड नहीं करेगा, और अगर उसने कॉफी का डिमांड किया तो सेम टाइम पे वो चाय का डिमांड नहीं करेगा। तो अगर चाय की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, अगर कॉफी की डिमांड बढ़ेगी तो चाय की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो इट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो डियर फ्रेंड्स, दैट वाज आवर शॉर्ट नोट, टाइप्स ऑफ डिमांड और interrelated demand in which we have completed 5 different categories, 5 different types of demand. That's enough for today. Thank you so much. Please take care of yourself. Soon I'll approach you again.